Hello students, welcome to next lecture, that is the lecture number 5 of atomic structure. In our previous lecture we talked about Planck's quantum theory, explanation of photoelectric effect and black body radiation by Planck quantum theory. So today we are going to start our lecture with electromagnetic spectrums. Electromagnetic spectrum. As we discussed in our previous lectures that various electromagnetic radiations, they are characterized by either their wavelength or we can say frequencies, and these two quantities are related to each other. So we can say that a radiation, electromagnetic radiation, is characterized by lambda or the frequency, that is nu. Till now we have mostly talked about the light, that is radiant energy की फॉर्म में हमने सिर्फ लाइट की बात की. In addition to light there are so many other electromagnetic radiations such as cosmic rays, ultraviolet radiations, your infrared radiations or radio waves. So what is an electromagnetic spectrum? An electromagnetic spectrum is an arrangement of various electromagnetic radiations, in order of their decreasing frequencies, or increasing wavelengths, As you know that the wavelength and the frequency are inversely proportional to each other. So all these radiations, if all the electromagnetic radiations, they are arranged in order of their increasing frequency and wavelength or decreasing frequencies. So let me draw the complete electromagnetic spectrum of various electromagnetic radiations which we encounter. If we draw this electromagnetic spectrum, let us consider that on going this side frequencies are decreasing nu, that is frequency, and नीचे हम लिख रहे हैं wavelength, increasing wavelengths, that is lambda. If we begin with your electromagnetic spectrum begins with a frequency of 10 to the power 24 hertz, or you can say wavelength approx 10 to the power minus 14. These radiations are your cosmic rays. These are cosmic rays. The next radiations are gamma rays, 10 raised to the power minus 12. They are gamma rays. Frequencies will be lying between 10 to the power minus 20, 10 to the power 24 to 10 to the power 20. Next is your 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 8. यहाँ पे आपकी एक्स रेज आ जाती हैं. And your next is 10 to the power minus 4, that is your UV light, ultraviolet radiations, and the frequencies will be here 10 to the power 16. And after UV there is visible region. This is your visible region, जिसके अंदर आप देखते हैं visible region. We will be dividing this into further different wavelengths, so I have just put this. After that there are IR, microwave, and the longest wavelength is of radio waves. I am not drawing it to the scale. ये यहाँ पे जाके फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 10 की पावर 4
और वेवलेंथ भी 10 की पावर 4। ये सारी वेवलेंथ सेंटीमीटर्स में है, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग विद कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एक्सेट्रा। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है दैट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स स्टार्टिंग विद 3800 एंगस्ट्रॉम and it will end at 7600 एंगस्ट्रॉम। और इसके बीच में आप इसके बारे में जानते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो दिस इज योर स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम that will be having these different 7 wavelengths starting with the violet and end at the red. Violet is having the smallest wavelength whereas red is having the longest wavelength. This is the electromagnetic spectrum. Now we can obtain or we can get spectrum of various radiations either emitted from a source, or if we make incident a group of radiation on some object and then analyze the radiations coming out of that. So let us know why these different wavelengths get separated when they are allowed to pass through either a diffraction grating or through a prism. हम जो white light का spectrum है, we get that white light spectrum by passing the white light through a prism. Now to understand that, you must understand a phenomena which is observed in light, that is dispersion of light. Dispersion of light. जब हम किसी रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करते हैं, then as a result of this prism between their path, what happens is your light get deviated from its original path by a certain angle. जैसे अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइन रे सीधी जाती है यहाँ पे, अब इस प्रिज्म की वजह से ये डेविएट हो गई इस साइड में। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। This is called angle of dispersion. This angle of dispersion is in fact inversely proportional to wavelength of the light. ये wavelength of radiation के inversely proportional है। That is why आप देखेंगे कि जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो विबग्योर, वायलेट सबसे नीचे होती है, रेड सबसे ऊपर होती है। सो बिकॉज वायलेट इज हैविंग द लोएस्ट वेवलेंथ, सो इट हैज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एज ए रिजल्ट यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट एट द बॉटम। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्पर्शन, व्हेन वी अलाउ a group of radiations to pass through either a diffraction grating or through a prism, due to different angle of dispersions, these radiations or these wavelengths get separated or they get splitted up into their wavelengths, जितनी जहाँ पे भी है, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। एंड इट इज़ वाइट लाइट के केस में ये अगर आप देखेंगे, मैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन को मिटाएं, अगर हम देखें तो आपको पहले भी लोअर क्लासेस में बताया गया, यू विल बी गेटिंग 7 वेवलेंथ, दैट इज विबग्योर। इस तरीके से आपको 7 रेडिएशंस दिखाई देंगी, 7 वेवलेंथ दिखाई देंगी, इनफैक्ट वॉयलेट से लेके रेड तक। नाउ हाउ वी कैन क्लासीफाई दी स्पेक्ट्रम्स, हमारे जितने भी ये स्पेक्ट्रम्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ रेडिएशंस वी आर एग्जामिनिंग,
फॉर ए स्पेक्ट्रम, दो चीज़ें होती हैं, हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर एंड अदर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। इस स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या है, आपका सोर्स ऑफ लाइट है, देयर इज ए प्रिज्म और ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड देन देयर इज ए टेलीस्कोप with the help of which we observe the radiations coming out of that grating or the your prism। मतलब यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट है कोई भी, यहाँ पे आपकी कोई ग्रेटिंग हो सकती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो सकती है, या आपका प्रिज्म हो सकता है, और इसके आगे आपका एक टेलीस्कोप हो सकता है जिससे हम रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ दिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और द प्रिज्म वी कैन एग्जामिन दैट। तब तो ये कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर। अब कभी कभी क्या होता है, हम इस टेलीस्कोप को रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए और विद ए फोटोग्राफिक फिल्म। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ रेडिएशंस और सोर्स ऑफ लाइट। ये आपकी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, यहाँ प्रिज्म भी हो सकती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और प्रिज्म, और ये आपकी है फोटोग्राफिक फिल्म। अगर आप इंस्टेड ऑफ टेलीस्कोप इफ यूज ए फोटोग्राफिक फिल्म देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। इन दैट केस यू विल बी गेटिंग ए पिक्चर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ द वेरियस रेडिएशंस, तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशंस वी आर एग्जामिनिंग, हमारे जो स्पेक्ट्रम्स हैं दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट वन इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इमिशन स्पेक्ट्रम इज वन इन विच वी एग्जामिन द लाइट और द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स। आपके किसी सोर्स से इमिटेड रेडिएशंस को अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे आप सनलाइट का जब स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, देन दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सन, because light is being emitted by the sun, so that will be called the emission spectrum। absorption spectrum क्या होता है? absorption spectrum में हम क्या करते हैं, we make incident a group of radiation, say white light which consists of 7 different colors on certain substances, and then we examine the radiation coming out of that substance with the help of a spectroscope, then the spectrum obtained will be called the absorption spectrum। I will be telling you why it is called absorption spectrum। तो emission spectrum क्या हो गया? So let me define the emission spectrum। emission spectrum is spectrum of radiations emitted by a source, emitted by a source। इसमें हम क्या करते हैं, सोर्स को एक्साइट करते हैं किसी भी तरीके से बाय सप्लाइंग एनर्जी। जैसे आपके सन के अंदर क्या हो रहा है, देयर आर फ्यूजन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट योर एनर्जी इज बीइंग एमिटेड। सिमिलरली जैसे आपका कोई बल्ब है, यू सप्लाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इट, इट गिव यू लाइट एनर्जी। सो इफ यू एग्जामिन द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट बल्ब, दैट विल बी द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दैट। तो जो ये इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, इसको फिर हम फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड योर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड discontinuous spectrum, or it is also called line spectrum, and it is also called atomic spectrum.
It is called atomic spectrum because this type of spectrum is obtained by the energy emitted by atoms and it is unique for a particular atom. जैसे किसी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरीके से बिल्कुल आइडेंटिकल स्पेक्ट्रम नहीं हो सकते किन्हीं दो एलिमेंट्स के, इसलिए इसको, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम है, इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? अभी हमने सनलाइट की बात की, तो सनलाइट के जब हम लेते हैं स्पेक्ट्रम, तो विबग्योर, आप लोगों ने ये स्पेक्ट्रम देखा हुआ है बहुत। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि वायलेट रेडिएशन अभी ख़त्म भी नहीं हो रही होती, इसके ऊपर ही आपकी इंडिगो ओवरलैप करने लग जाती है। इंडिगो पहले ही स्टार्ट हो जाती है, आपकी इंडिगो अभी ख़त्म भी नहीं होती उससे पहले ही ब्लू स्टार्ट हो जाती है, ब्लू ख़त्म भी नहीं होती उससे पहले ही ग्रीन स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसमें यहाँ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम की जो रेंज है, इसके अंदर जितनी भी पॉसिबल डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं which can be as high as infinite, all those different wavelengths they are present in this spectrum without any break. एक continuum है लगातार, continuously all the wavelengths are present, so that is called a continuous spectrum, इसीलिए इसको continuous spectrum बोलते हैं। अब अगर हम यही काम करें, सोडियम वेपर लैंप लेके, सोडियम वेपर लैंप, ये जो आपके स्ट्रीट लाइन में येलो लैंप होते हैं ये सोडियम वेपर लैंप ही होते हैं। अगर हम इससे निकलने वाली रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करें और वो एग्जामिन करें हम आगे, तो आपकी ये दो लाइंस में टूट जाती है, दो येलो कलर की लाइन में टूट जाती है, सेपरेटेड बाय ये ब्लैक बैंड। इन दोनों लाइंस के बीच में एक ब्लैक बैंड बनेगा। So you will observe only two lines, that is why it will be called a line spectrum or a discontinuous spectrum, because it contains only two different wavelengths between these two ranges. और क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है एटम्स की, तो इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। सो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और योर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दूसरा जो स्पेक्ट्रम हमने बात की थी, दैट वाज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, सोडियम वेपर लैंप वाले स्पेक्ट्रम को। इसमें जो दो वेवलेंथ दिखाई देती है वो जनरली 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम है, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। सो दीज वेवलेंथ्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। अब हम क्या करें, वाइट लाइट लें और इस वाइट लाइट को पास करें थ्रू ए बीकर और ए ट्यूब कंटेनिंग योर सोडियम वेपर्स। आप यहाँ पे एक ट्यूब ले लीजिए, उसमें से आप ये लाइट पास कर दीजिए। ऐसा कीजिए, आप सॉल्यूशन में से भी पास कर सकते हैं, पर मैं आपको, मान लीजिए कि ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपने सोडियम वेपर्स भर रखे हैं, यहाँ से आप वाइट लाइट डाल रहे हैं, यहाँ पे आपके सोडियम वेपर्स हैं, ये लाइट निकल के आ रही है, इसको आपने प्रिज्म में से पास किया और आपने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। अब क्या देखेंगे इस स्पेक्ट्रम में आप, इस स्पेक्ट्रम में आपकी जो येलो लाइट थी वहां पे आपको एक डार्क बैंड दिखाई देगी। येलो कलर नहीं दिखाई देगा, इसमें विबग्योर दिखाई देगा बजाय आपकी विबग्योर के। येलो लाइट की बैंड आपकी खत्म हो जाएगी यहां से। क्यों खत्म हो जाएगी? बिकॉज येलो कलर हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सोडियम वेपर्स। सोडियम वेपर्स ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो इसके अंदर आपकी येलो लाइट कहाँ गई? येलो लाइट आपके सोडियम वेपर्स ने एब्जॉर्ब कर ली। तो बाकी जो इंसिडेंट रेडिएशंस थी वो आप उसमें जो वेवलेंथ थी वो सब दिखाई देंगी, येलो लाइट नहीं दिखाई देंगी।
अगर हम व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम के साथ इन दोनों स्पेक्ट्रम को कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि दीज टू आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। मतलब ये वाला स्पेक्ट्रम अगर हम उठा के यहाँ डाल देंगे तो आपका पूरा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाएगा फिर से। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ए इमिशन स्पेक्ट्रम एंड ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में सोडियम की सिर्फ 2 येलो लाइन दिखाई दे रही थी, येलो कलर की, और विबग्योर के अंदर आपका क्या होगा, सिर्फ येलो लाइट को छोड़ के बाकी सबकी सब वेवलेंथ आपको दिखाई देंगी। अब आ जाइए आप स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाउ वी गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वी विल फिल इट विद द हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमारी H2 गैस है, एंड वी विल सप्लाई सम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू दिस। इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब सप्लाई करेंगे, इट विल बी इमिटिंग सर्टेन रेडिएशंस, इसकी रेडिएशंस निकलेंगी। दोज रेडिएशंस विल बी मेड इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म थ्रू ए स्लिट। ये हमारी स्लिट है, इसके आगे हमारा प्रिज्म है, और यहाँ से फिर आपका स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाएगा, ये हल्का सा नीचे की तरफ आएगी। तो जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं इस तरीके से, इमिटेड रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फिल्ड ट्यूब से, देन वी गेट ए नंबर ऑफ लाइंस इन दिस स्पेक्ट्रम। हमारे को बहुत सारी लाइंस की ग्रुप्स मिलते हैं इसके अंदर, और जितनी लाइन हमें मिलती हैं उन सभी लाइंस को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 सीरीज़ के अंदर। 6 सीरीज़ में डिफाइन कर सकते हैं। कुछ बुक्स में 5 भी लिखी हो सकती है फंड सीरीज़ तक, बट द 6th वन इज़ हम्फरी सीरीज़। वी विल बी आल्सो राइटिंग दैट हम्फरी सीरीज़ ओवर हेयर। तो सबसे पहली जो ग्रुप ऑफ लाइन दिखाई देगा आपको, ऐसे एक लाइनों का ग्रुप दिखाई देगा ऐसे, दिस टाइप ऑफ ग्रुप विल बी देयर, ठीक है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, इट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। then there will be some gap, black band, and then there will be again a group of lines like this. There will be a group of lines, and this is called Balmer. It is called your Balmer series. Then again there is a gap, and then there is again a group of lines that is called Paschen. It is called Paschen series. Then again there is a gap, and then a group of lines, it is called bracket series. This is your bracket, this is called your bracket series. Then again a gap, and then a group of lines, this is called fund series. And similarly there is a 6th series of lines also, this is called Humphrey series. So these are the lines which will be observed, and they can be grouped into a series: Lyman, Balmer, Paschen, bracket, fund, etc. ये जो बाल्मर सीरीज है, इट इज ऑब्जर्व इन लाइट, विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट में दिखाई देता है, जो हमारी रेंज है जिसको हम देख सकते हैं, ये हमारी यूवी में दिखाई देगी। ऑल अदर आर इन आईआर रीजन, बाकी सब आईआर में जाती हैं, ये यूवी में जाएगी। तो इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दिस बाल्मर सीरीज लाइंस दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इवन ए नेक्ड आई। बाल्मर ने सबसे पहले इन सीरीज़ को स्टडी किया, अपनी जो लाइंस दिखाई दी इनको स्टडी किया, and he gave a formula to calculate the wave number of these lines in the visible region, that is the Balmer series. तो Balmer series में जो lines है, wave number
of radiations in Balmer series is given by formula 1 upon lambda. Here lambda is in centimeter. That will be equal to 109677 bracket शुरू 1 by 2 square minus 1 by n square. This is the formula. Centimeter minus 1, of course its units will be centimeter minus 1. This is the formula where n is a number greater than 2, where n is greater than 2, that is 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है इसके बाद, but it will be always greater than 2. This is a constant given by the Balmer. Later on, another scientist, Rydberg, gave formula to calculate the wave number of any line observed in spectrum of hydrogen by the formula 1 upon lambda in centimeter, that is equal to RH, where this RH is Rydberg constant, divided by 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n2 is greater than n1. ये ध्यान रखना आपने. ऑफ कोर्स इट्स यूनिट्स विल बी सेंटीमीटर माइनस. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो राइडबर्ग कांस्टेंट है RH, इट्स वैल्यू इज सेम एज गिवन बाय योर बाल्मर 109677 centimeter minus 1. So Rydberg constant is having this value. So using this formula we can calculate the wave number of any line in Balmer series, whereas by using the Rydberg formula we can calculate the wave number of any line observed in any of the series in hydrogen spectrum. So this is about the hydrogen spectrum. Now let us have discussion about which series, for which series what is the value of n1 and what is the value of n2. Lyman series में, for Lyman series, for Rydberg formula, in Rydberg formula n1 is your 1 and n2 is greater than 1, that is it can be 2 3 4 5 and so on. आगे आप कहीं तक मर्जी जाइए. For Lyman series इसका मतलब क्या है, जब n की वैल्यू यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा हो और n1 की वैल्यू 1 हो, तो जो लाइन आपको दिखाई देगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो लाइमन सीरीज में फॉल करेगी. जो आपकी दूसरी सीरीज है बाल्मर सीरीज, इसके अंदर आपका n1 इज इक्वल टू 2 है और n2 इज 3 4 5 6 एक्सेट्रा. सिमिलरली for Paschen series, your n1 is 3, n2 is 4 5 6 7 etc. For bracket it will be n1 will be equal to 4, n2 will be equal to 5 6 7 8 and so on. And for fund it is n1 is equal to 5, n2 is equal to 6 7 8 9 and so on. And for Humphrey series, that is the sixth one, n1 is 6 and n2 is 7 8 9 10 etc. So by putting these values we can calculate. इसका मतलब आपको और समझ में आ जाएगा when we will be talking about the Bohr model and how that model explained this series. So this is about the spectrum, complete spectrum of hydrogen. Now let us discuss about the failures of Rutherford model of atom. Failures of Rutherford model of atom. Then we will be going to the next model, that is the Bohr model. Failures of
रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम miserably failed first to explain stability of atom, stability of atom. जो रदरफोर्ड मॉडल है could not explain stability of atom. And how it could not explain the stability of atom? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसको अगर हम प्रॉपरली अप्लाई करें तो उससे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट होता है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस था रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से, विच वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड and electron was revolving around this nucleus in circular path. अब होगा क्या? Because this is positive, this is negative, there is a force of attraction and this electron is being constantly accelerated. Acceleration कैसे हो रहा है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर? Because the direction of the electron is continuously changing. So its path is changing, direction is changing. That is why it is accelerated, although it is moving at a fixed speed, you can say. हमने कहा भी था कि रदरफोर्ड मॉडल में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स. तो क्या होगा, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं विच आर एक्सेलरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अट्रैक्टिव चार्ज, अपोजिटली चार्ज, दे बिकम ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मतलब ये लगातार रेडिएशंस को इमिट करेंगे, एनर्जी को इमिट करेंगे. तो अगर ये लगातार एनर्जी को इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द पाथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी स्पाइरल, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा एंड अनटिल इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली ये कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में. एंड ऑल दिस रिक्वायर्स ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली ये कह लीजिए 1 पिकोसेकेंड्स के अंदर ये आपका सारा काम हो जाएगा. सो एटम इज हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. दूसरी जो इसकी लिमिटेशन थी, कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाई वी गेट दैट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी रदरफोर्ड के पास. सो दीज वर द टू मेजर ड्रॉबैक्स और फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. देन अनदर साइंटिस्ट, that is Niels Bohr, put forward another model of atom that is called Bohr model of atom. Bohr model of atom, Bohr model of atom. This model of atom, which was proposed by Niels Bohr, it was based on Planck's quantum theory. Planck's quantum theory के ऊपर बेस था ये. और इस मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? द फर्स्ट पोस्टुलेट वाज देयर इज ए हैवी positive center within an atom called nucleus. एक हैवी पॉजिटिव सेंटर है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस. सेकेंड पोस्टुलेट वाज इलेक्ट्रॉन्स are revolving around this nucleus, are revolving
around nucleus in certain discrete या फिक्स्ड कह लीजिए आप, certain discrete paths called orbit. This was the term which was propagated by the Bohr for the circular path of the electron while it is revolving around the nucleus. So आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। रदरफोर्ड ने ये चीज़ नहीं कही थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर घूमेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ। द थर्ड पोस्टुलेट इज as long as an electron revolve in an orbit, it neither absorb energy nor इमिट एनर्जी। और बोहर ने यह कहा जब तक आपका इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ना ही वो इसको इमिट करेगा। द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ दिस बोहर मॉडल इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorb energy, it jumps to next higher energy shell या ऑर्बिट। अभी हम बताएंगे क्योंकि इनके जितने भी ये ऑर्बिट होते हैं, बोहर के ऑर्बिट, दे हैव ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इनको हम एनर्जी शेल भी बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको रेडिएंट एनर्जी दी, एब्जॉर्ब की, तो ये यहाँ से जंप करके किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितना अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब किया, हाउ मच अमाउंट that electron has absorbed. And if it emit energy, it jumps to lower orbit, तो फिर ये नीचे वाले ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी को इमिट कर दिया, तो ये जंप करके नीचे आ जाएगा। अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट हैज इमिटेड। पांचवा जो पोस्टुलेट है, हमने क्या कहा कि कुछ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्टेन डिस्क्रीट और फिक्स सर्कुलर पाथ। और वो सर्कुलर पाथ को फिक्स कैसे किया बोहर ने? ही प्रपोज दैट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर विच एंगुलर momentum is quantized. Angular momentum is quantized and is a whole number multiple of h upon 2 pi. Whole number multiple of h upon 2 pi. Where h is Planck's constant and pi you know. So angular momentum फिजिक्स में आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे mvr, where m is the mass of electron, v is the velocity with which the electron is revolving, and r is the radius of orbit. It will be equal to n into h upon 2 pi,
where your n will be 1, 2, 3 and etc. So only those circular paths or orbits will be allowed for which your angular momentum is nh upon 2 pi. ये आपका बोहर का मॉडल ऑफ एटम था. ये पोस्टुलेट थे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोहर मॉडल ऑफ एटम वाज बेस्ड. So this model of atom succeeded in explaining your limitations of Rutherford model. तो उसको हम सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल में डिस्कस करते हैं. सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल. तो बोहर मॉडल का सक्सेस पहला यही था, इट explained stability of atom. It explains stability of atom. इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया. कैसे एक्सप्लेन कर दिया? इसने क्या कहा, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक ना वो एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा. तो नेचुरल सी बात है, जब तक वो सर्कल में है उसकी एनर्जी फिक्स है, तो इसका पाथ जो है वो इट विल नॉट बी शॉर्टेंड, छोटा नहीं होगा, एंड इट विल नॉट फॉल्ट इनटू द न्यूक्लियस. Secondly, it explained spectrum of hydrogen or hydrogen like species. इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को और हाइड्रोजन से मिलती जुलती जो आपकी स्पीसीज थी, आयंस जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन में क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे सभी एटम्स के स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हेयर एट बोहर मॉडल. टुमारो आई विल बी टेकिंग अप हाउ इट एक्सप्लेन द बोहर मॉडल ऑफ एटम, एंड पीरियड टू दैट although mathematical calculations as regard to the energy of the electron in an orbit, radius of an orbit, velocity of electron in an orbit are not included in our syllabus over here, लेकिन उन पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं competitions में. So I will be taking that mathematical part. I think that is there in your physics also. I don't know whether it is in 11th or 12th, but I will be taking that mathematical parts, how to calculate the energy of electron in an orbit, velocity and the radius tomorrow, as well as the how Bohr model explain the your spectrum of hydrogen. So thank you very much.